وہ بھی ہمارے لیے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. اور ایک قاتلانہ حملہ عمران خان صاحب کے اوپر پہلے ہو چکا ہوا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کو پہلے بھی جو ہے دھمکی آ چکی ہے، جس میں آصف علی زرداری کا بھی نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب زمان پارک کے اندر جتنے بھی یہاں پر کیمپس لگے ہوئے ہیں، یہ کارکنان نے خود لگائے ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی کے پیش نظر. اور چونکہ ہمیں اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر اور ان کے لگائے گئے اس نگران گورنمنٹ کے تحت جو افسران ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، جن کو انہوں نے تعینات کیا، جو کہ 25 مئی کے ظلم اور بربریت کے اندر جو ہے وہ ملوث رہے ہیں. آج انہوں نے یہاں پر ہمارے ایم پی اے ہیں لاہور سے شبیر گجر صاحب، اور ان کے بھائی ہیں خالد گجر صاحب جو کہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کا رائیونڈ سے جو ہے وہ تعلق ہے. ان کے اوپر پہلے انہوں نے انتقامی طور کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی ہیں، اور اب ان کے پورے گاؤں کا جو ہے وہ محاصرہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر پولیس نے بھاری نفری کے ساتھ جو ہے وہ دھاوا بولا ہوا ہے. یہ تمام تر کارروائیاں سی سی پی او لاہور کی سربراہی کے اندر ہو رہی ہیں، جو کہ 25 مئی کے ظلم کے اندر بھی شامل تھے. چونکہ یہاں پر خالد گجر اور شبیر گجر ان کا یہاں پر کیمپ موجود ہے، ان کے یہاں پر لوگ دن رات عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اور ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ جانثاران عمران خان ہے. لہذا پہلے انہوں نے سیکیورٹی واپس لی ہے. اب جو ہمارے اپنے جانثار ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ حملے شروع کر دیے گئے. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آئی جی پنجاب کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اس سی سی پی او لاہور کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی حد جو ہے وہ تجاوز کر رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے ظلم اور بربریت کی اس وقت ظلم کیا، اب ہم آپ کو یہ ظلم نہیں کرنے دیں گے. ہمارے جو صبر کا جو ہے وہ امتحان نہ لیا جائے. پوری پاکستان تحریک انصاف کراچی سے لے کے خیبر تک، خیبر سے پنجاب تک ہم اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو بھی ان کے ساتھ ریاستی دہشت گردی اور سرکاری مشینری کے ذریعے ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے. لہذا آپ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کے ذمہ دار پھر آپ لوگ ہوں گے. پھر ہم سے کوئی جو ہے وہ حالات کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی گلہ جو ہے وہ ہم سے نہ کرے. ہم اس ایف آئی آر کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جس بھونڈے انداز سے طاقت میں سرمست ہو کے ان کے گاؤں کے اوپر، ان کے ڈیرے کے اوپر، ان کے دفتر کے اوپر جو دھاوا بولا گیا ہے، جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اس کی بھی ہم شدید الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. اور فی الفور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس انتقامی کارروائی کے آپریشن کو جو ہے وہ بند کیا جائے، اور فوری طور کے اوپر پولیس کو وہاں سے جو ہے واپس بلایا جائے. یہ ہمارا جو ہے وہ مطالبہ ہے، اور اس کا ایک ہی واحد مقصد ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پر آ کر عمران خان کے جانثار بن کے یہاں پر اپنے قائد کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کو دبایا جائے، ان کو توڑا جائے، تاکہ کسی طریقے سے زمان پار کی سیکیورٹی کو کمزور کیا جائے. تو یہ میں نے آپ کو نام بھی بتا دیے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ افسران اگر کسی قسم کا بھی کوئی بھی نقصان ہوتا ہے وہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ خود ہوں. سر یہ بتائیے گا، یہاں پہ آپ نے کہا سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ آپ کے اپنے اہلکار یہاں پہ جو ہے نا وہ سیکیورٹی کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے پاس سیکیورٹی کے کیا حالات موجود ہیں؟ کوئی ویپنس موجود ہے؟ کس طرح سے سیکیورٹی؟ نہیں دیکھیں، ہمارے پاس ہم کو ویپنس کے ساتھ سیکیورٹی تو نہیں کر سکتے. ہمارے یہ جتنے کارکنان یہاں پہ موجود ہیں، یہ جانثاران عمران خان ہے، اور یہ تو اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں آئین میں اسپرٹ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے،
गैर जानिबदार होना चाहिए। ये जानिबदार सेटअप आ गया। जब से आया उस वक्त से FIR भी शुरू हो गई हैं, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, कार्रवाइयां भी जो है वो शुरू हो गई हैं। अब ये खालिद साहब जो है वो मेरे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। इनके दफ्तर पे, इनके डेरे के ऊपर इस टाइम जो है वो सैकड़ों पुलिस वालों ने CCPO लाहौर के कहने के ऊपर जो है वहां पर जो है वो धावा बोला हुआ है। इसका क्या कसूर है कि ये यहाँ पर कैंप लगाकर इमरान खान की जो है वो हिफाजत के ऊपर यहाँ पे मामूर है। इसने कौन सी बंदूकें, कौन से जो है वो असले नाजायज तौर के ऊपर अपने हाथ में उठाए हुए हैं। तो लिहाजा मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि अपनी लिमिट्स में रहें, लिमिट्स को क्रॉस ना करें, अदरवाइज जो है वो फिर हालात के जो जिम्मेदार हैं, हालात की संगीनी के जिम्मेदार ये खुद होंगे। ये खालिद साहब भी खुद आ गए। एक सेकंड पहले बात कर लेने देना। देखिए मैं खालिद भाई आ गया है। अच्छा एक सेकंड बेटा बात कर। मैं सबसे पहले तो ये जो मुसल्लत शुदा टोला है, मैं जो इंटरिम CM है उनको बताना चाहती हूँ कि आपके पास मैंडेट नहीं है ये सब करने का, जो आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और मैं उन तमाम ऑफिसर्स को IG समेत और कमियाना साहब आपको भी हम वार्न करते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ हमेशा आइन की पासदारी की बात करती है, लेकिन अगर किसी ने भी हमारे कारकुनान के ऊपर, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, हमारे टिकट होल्डर्स के ऊपर, हमारे ex-MPs के ऊपर इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह हम ये बात याद रखेंगे और आइन और कानून के दायरे के अंदर आपसे पूछेंगे कि आप किस चक्कर में खालिद गुज्जर साहब और शबीर गुज्जर साहब की गलती क्या है। उनका कसूर ये है कि वो इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी दे रहे हैं, जो कि रियासत का काम है। इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर लाहौर में हमारी तहरीक इंसाफ के एक मुंतखब MPA जो अभी अब साबिक हो गए हैं और उनके भाई, बड़े भाई खालिद गुज्जर साहब पर चढ़ाई की गई। किसी पर्चे में मुलव्विस करने की कोशिश की गई या नामजद कर दिया गया। उनके गांव का घेराव किया गया और वहां पुलिस अभी भी उधर ही है की बहुत बड़ी तादाद भेजी गई और जिसका हमें खदशा दिखाई दे रहा था कि पुलिस इनकाउंटर का एक माहौल बनाया गया। और उस पुलिस इनकाउंटर का जब माहौल बनाया जाता है तो आप जानते हैं कि बेगुनाह लोग, उनकी जान को खतरा लाहक हो जाता है। मैं समझता हूं ये फस्तायत का एक नया मुजाहिरा है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। अगर आपको कोई खदशा या आपको कोई शख्स दरकार है तो ये नामी गिरामी लोग हैं, ये कोई छुपने वाले या भागने वाले लोग नहीं हैं। आप उन्हें कहें कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवाल जवाब करना है, आप फलां वक्त पे फलां के सामने पेश हो जाएं। तो मुझे यकीन है कि ये पेश हो जाते और इस किस्म के इनकाउंटर की और इस किस्म के मुहासरे की जरूरत बिल्कुल पेश ना आती। ये वो कड़ी है जिसका हम सिलसिला देख रहे हैं और ये तसलसल से चल रही है। आपने देखा चंद रोज पहले फवाद चौधरी के साथ हुआ, जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह उन्हें ले जाया गया, जिस तरह फरूख हबीब को भी मुलव्विस करने की कोशिश की गई कि इन्होंने पुलिस से लड़ाई करने की कोशिश की। ये कहां लड़ाई करना जा रहे थे? नहत्ता आदमी ये अगर कह रहा हो कि अदालत का ये हुक्म है और आपको उसकी खबर है या नहीं,
मैं आपको मुत्तला करने आया हूं, उस पर पर्चा हो जाए। फिर आपने देखा कि शेख रशीद पर एक उनको रात की तारीकी में उठा लिया गया और फिर उन पर किस किस्म के पर्चे डाले जा रहे हैं। मतलब है कि वो चीजें जो माजी में हुआ करती थी आज के जमाने में दोहराई जा रही हैं कि जी वो शराब की बोतलें बरामद हो गई। आपको याद है एक जमाने में भैंस की चोरी के मुकदमे हो जाया करते थे। ये क्या हो रहा है? इस वक्त मुल्क किन चैलेंजेस से गुजर रहा है? इस वक्त हमें दहशतगर्दी का सामना है और हमने कौम को यकजा करना है उसके लिए। इस वक्त हम एक माशी बहरान का शिकार हो चुके हैं और उसके लिए हमें ठोस इक़दाम लेने हैं। इस वक्त अदालतों में आईनी पिटीशन दाखिल हैं और उसकी कौम मुंतजिर है कि क्या हो रहा है। आइन शिकनी हो रही है, क्यों हो रही है? वाज़े आइन की हिदायत के मुताबिक अगर ले तो लाल हो रही है, क्यों हो रही है? ये सब इश्यूज हैं जो कौम के सामने हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तहरीक इंसाफ इन हथकंडों से मरूब नहीं होगी। कल पैगाम आता है कि हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन जाए। हमें मुल्क अजीज है, हमें पाकिस्तान की एक एक शहरी की जान अजीज है, एक एक शहरी की जान अजीज है, चाहे वो वर्दी में है या सिविलियन कपड़ों में है। वो हमारा है, हम उनके हैं। आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ दावत आती है कि इन चैलेंजेस पर हमें सर जोड़ना चाहिए और दूसरी तरफ ये एक तसलसल से ये एक डराने का, धमकाने का, पर्चों का सिलसिला जारी है। ये मुतजाद चीजें हैं। रिकंसिलिएशन और कौम को यकजा करने के लिए हुकूमत को दिल बड़ा करना होता है और जिन चैलेंजेस से पाकिस्तान दो चार है उनसे निबर्द आजमा होने के लिए इस किस्म के हथकंडों से इज्तनाब करना होता है जो किए जा रहे हैं। मैं आज भी समझता हूं कि वहां पुलिस को फौरी वहां से हट जाना चाहिए, इनके गांव को मुहासरा खत्म होना चाहिए। अगर उन्हें कोई सवाल करना है, कोई पूछना है तो उसका बाकायदा एक कानूनी तरीका है, उस कानूनी तरीके को फॉलो करें और वो अपने आप को पेश कर देंगे। लेकिन इस किस्म के खदशात जो हैं वो तशवीशनाक हैं और हमें इनसे इज्तनाब करना होगा। सर ये बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ है एपीसी में आपको बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है गिरफ्तारियां और पर्चे काटे जा रहे हैं, तो अब आपने क्या सोचा है कि आप एपीसी में जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, सवाल ये है, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है जिसको वो एपीसी कह रहे हैं, उसमें वो चाहते क्या है बताएं तो सही, उनका एजेंडा क्या है और हमें बुलाना चाहते हैं क्या अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बुलाना चाहते हैं या कौम को यकजा करना चाहते हैं? ये जो चैलेंजेस हैं, मंतकी बात तो ये है कि इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कौम को यकजा किया जाए। अगर कौम को यकजा करना है तो इस किस्म की कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। एक तरफ कार्रवाइयां जारी रहें, दूसरी तरफ दावतें आए, इनकी नाकामियों पर मोहर लगाने जाए। किस मकसद के लिए जाए बताया जाए ना। हमेशा
जब आप कदम उठाते हैं तो उसके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। क्या ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट है जो क्रिएट की जा रही है? और इस एनवायरनमेंट के अंदर रहकर आप मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं? हरगिज नहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं है। इसलिए तहरीक-ए-इंसाफ इस पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है कि हमें मुल्क से प्यार है, हमें पाकिस्तान के शहरियों से प्यार है। और आपने देखा आज यकजहती के लिए पूरा पेशावर बाहर निकला और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। वहां सियासी नारे नहीं लगाए, अमन की बात की है, मोमबत्तियां लेकर सफेद झंडे बुलंद कर रहे। आप देखेंगे कि कल लाहौर में लिबर्टी चौक पर उन शोहदा के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। किसी को नीचा दिखाना नहीं है, कोई इस पे सियासत करना मकसद नहीं है। ईमानदारी से हर जी शऊर पाकिस्तानी को फिक्र है, तशवीश है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क का, हमारा मुस्तकबिल कहां जाएगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का क्या बनेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हुकूमत बिल्कुल इन हालात से लाताल्लुक होकर अपने पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रही है। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं और उसी जमात के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। इमरान खान की जानिब से जो आज सरदारी पर इल्ज़ाम लगाया गया जा रहा है कि कर्नल सूबे का बना रहे हैं, क्या इस तरह का आसफ अली जरदारी करते रहे पहले भी काम? सिंध के लोगों से ये सवाल कीजिए और मुझे इस पर मज़ीद तफसीलात की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप इतने मासूम भी नहीं है। साहब ये बताएं कि आज चलो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से हटके एपेक्स का भी इजलास बुलाया गया था, जिसमें असली हुकाम भी शरीक हुए। क्या आपका ये पॉइंट समझा जाए कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वो भी इसी तरह जिस तरह ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बारे में कह रहे हैं बेहद संजीदा था, या वो लोग? मैं नहीं कहूंगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। एपेक्स कमेटी का अगर इजलास हुआ तो यकीनन वो एक संजीदा बैठक थी और यकीनन वहां जो लोग थे उन्हें जो मुल्क के हालात है उसके बारे में फिक्र है और होनी चाहिए। हर आम शहरी को है तो जिम्मेदार हजरात को क्यों नहीं होगी। मैं किसी की नीयत पर शुबो नहीं कर रहा, मैं किसी की नीयत पर शुबो बिल्कुल नहीं कर रहा, न नाजायज बात करूंगा। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उनके जो अपने अज़ाइम हैं, उनका जो एजेंडा है वो कौमी एजेंडे से मुताबिकत नहीं रख रहा। वो अपने जाती एजेंडे को कौमी एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। पीडीएम हुकूमत के अलावा किसी और ने भी आपको एपीसी में जाने की दावत दी है, आने की दावत दी है? देखिए, हुकूमत वक्त देती है ना। आप कहते हैं कि हुकूमत वक्त देती है ना, तो हुकूमत वक्त कहती है सब इदारे उनके ताबे हैं, वजीर आजम है मुल्क के, तो दावत तो एक सियासी बैठक की दावत कहां से आनी चाहिए? फिलहाल तो पीडीएम के आप वज़ीर आज़म गुज्जर साहब और खालिद हुसैन साहब ने जो है वो अजीज चौहान को बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए माफी भी दी। इनका जो क्लैश हुआ गोली सलीम के ऊपर, उसके बावजूद अब निगरान हुकूमत के जरिए दोबारा इनसे इंतकाम लिया जा रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं आपको पहले अर्ज कर चुका कि ये एक कड़ी है, ये एक कड़ी का हिस्सा है। आज इन पर है, कल किसी और पे हो सकता है, परसों किसी और पे हो सकता है। मकसद क्या है? मकसद है दबाव, मकसद है खौफ में लोगों को मुब्तला कर देना, ये मकसद है। और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए तवज्जो हटाना, ये है। ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, सियासी इस्तेहकाम हासिल करने में नाकाम हो चुकी है, मईशत को इस आजमाइश से निकालने में नाकाम हो चुकी है, दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना करने में पीडीएम की गवर्नमेंट हमें नाकाम दिखाई दे रही है। लोगों का एतमाद इनसे उठ चुका है
लोग समझते हैं कि इनके पास उनके मसाइल का हल नहीं है। तभी तो मुल्क की 71% लोगों ने नए इंतखाबात का मुतालबा किया है। अगर लोग इनसे मुतमईन होते तो लोग यकीनन मौका देते, और यकीनन जहां हमने इतना इंतजार किया है तो चंद माह और इंतजार करने में कोई मुजाहिका नहीं था। लेकिन जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, हम दयानतदारी से समझते हैं कि मजीद ताखीर इतना नुकसान देगी जिसका अजाला मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जो फैसले माशी आज कर रहे हैं, अगर ये 8 माह पहले कर दिए होते, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो अंडरस्टैंडिंग की थी, जिसको डार साहब ने रिवर्स करने की कोशिश की और कहा कि मैं आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा, मेरे पास हल है, लोगों ने हल नहीं देखा। हल क्या, लोग बेहाल हो गए हैं। तो अगर ये फैसले बर वक्त हो जाते तो शायद महंगाई जिस बुलंदी को पहुंची है ना पहुंचती, शायद बेरोजगारी जिन हदों को छू रही है ना छूती, शायद जो इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है इस तेजी से बंद ना हो रही होती, शायद जो महंगाई है, अफरात-ए-ज़र है, वो इस हद तक ना पहुंचा होता, रुपए की कदर इस तेजी से न गिरती। ये सारी चीजें अगर बर वक्त कहते हैं ना अंग्रेजी में, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9।